within 6 months. Yes. 6 months apart. Or you can have an amenorrhea about for 6 to 12 months after a cyclic pattern has been established. The requirement is the lady must be having a normal menstrual cycle, and again she stops bleeding for about 12 months. Then you label it as ovulatory dysfunction. And in adolescent, it is reasonable to delay the workup for about 1 to 2 years because initially the pattern is not established. So it's too hasty to jump up to conclusion कि नहीं जी, she has got polycystic ovarian syndrome. So coming up with all this, अब पहले तो एक टिपिकल क्राइटेरिया था, शी शुड बी हैविंग हाइड्रोजन एंड्रोजनिज्म, शी शुड बी हैविंग ओवेरिटरी डिस्फंक्शन, शी शुड बी हैविंग अ polycystic ovarian morphology on the ultrasound. But now they've got 4 phenotypes. This is easier because we see all these patterns in a clinical workup. So when we see the classical one, the phenotype A, we got the same thing, the an evolution, PCOS morphology, and hyperandrogenemia. When we go to the phenotype B, we again got hyperandrogenemia, but we got the normal ovarian morphology. It's not necessary कि उसकी PCOS on the ultrasound आए, and she must be having oligo and evolution. This is the phenotype B. The A and B both come into the classical PCOS. Then we've got the phenotype C. This is the common one, not the common one, the uncommon one, but it's more common in the high elite society. हम कहते हैं because of the food, because of the other things. So they are the ovulatory PCOS. They have got hyperandrogenemia, they present with the androgenic features, and they have got polycystic morphology on the ultrasound, but they are ovulating and they are having a normal menstrual cycle. And finally, we got the phenotype D. This is a non-hyperandrogenic PCOS. We got an evolution. We have got the polycystic morphology, but luckily they don't have the androgenic features on it. So this is the phenotype D. So it's more easier now. We can categorize patients according to these different phenotypes. Um, the main thing is it's a polyfactorial disease आप कह लें इसको. So it's got a very strong genetic inheritance. The phenotypical expression will vary based on genetic penetrance and environmental factors. So we got the defective genes, but how she's going to present depends upon the environmental factors as well. And because it's got a transgender transmission as well. Daughters born to mother with PCOS have a five-fold higher risk of developing PCOS, possibly due to prenatal androgen excess and early androgen exposure. And this is more next आप आ जाए. अच्छा, 19 risk gene जो लोग आए हैं identify हुए हैं that are linked to this neuroendocrine metabolic and reproductive disease. And जो आपका body mass index है, आपकी fasting insulin level, menopause timing, depression, male pattern baldness, they all have got the genetic linkage for all these things have got a link with PCOS. और इसके अलावा एपिजेनेटिक मैकेनिज्म, जैसे अभी हमने कहा कि फीमेल्स बॉर्न टू मदर हैव अ फाइव फोल्ड हाई रिस्क, दिस इज द एपिजेनेटिक मैकेनिज्म. एपिजेनेटिक ये है कि आपके जीन्स में स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं वो मेन जीन के स्ट्रक्चर में नहीं होते. उसके साथ पे इंट्रॉन और एक्सॉन्स होते हैं, उनमें कुछ ऐसी हेरिटेबल चेंजेस आ जाती हैं जो आप इनहेरिट करते हो. वो जैसे कहा जाता है कि इफ द ग्रैंडफादर वाज अ स्मोकर, तो देयर इज अ लिटिल बिट चांस कि ग्रैंडसन कैन turn into smoking. So this is the epigenetic thing that is also involved in PCOS. So how do you differentiate PCOS? We have got non-classical congenital adrenal hyperplasia. इसका late onset हो सकता है. Sometimes androgenic features आते हैं. So how do you differentiate it? Like आपको 7-hydroxyprogesterone एक level है, एक molecule का level है that is raised in blood. So it helps to differentiate. Androgen secreting neoplasm, because you have got a lot of androgen excess, you have got the hyperandrogenism at the basic feature of PCOS. So आप उसको कैसे differentiate करोगे? Rapid fertilization. You got all the male features coming up very rapidly. Hoarseness of voice हो जाएगी, आपका male pattern जो है वो और speed से सामने आएगा. Again, we have got the hormone that can differentiate it. Hypothyroidism, because we have to rule out hypothyroidism. हाइपोथायराइडिज्म के कुछ फीचर्स पीसीओएस को मिमिक करते हैं. आपका वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं. हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया ओवेरिटी डिस्फंक्शन कॉज करता है. अगेन यू हैव टू रूल आउट दैट, बिकॉज इफ यू वांट टू लेबल दैट पेशेंट पीसीओएस, you have to rule out all the other possible things that can mimic PCOS. Cushing syndrome, acromegaly, all of them have a certain aspects that can mimic PCOS. So आपने इसको rule out करना है to label that patient as a particular PCOS. पैथोफिजियोलॉजी वही हमने जैसे कहा, मेटाबॉलिक कंडीशन है. एंड द मेन थिंग दैट अंडरलाइज द पैथोफिजियोलॉजी इज द इंसुलिन रेजिस्टेंस. हाउ डू वी गेट दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस? इट्स इम्पोर्टेंट. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड, ये एक सेल की डायग्राम है, द स्क्रीन शेयरिंग कैन शो इट. आई थिंक यू कैन ऑल सी दिस डायग्राम.
नेक्स्ट करेंगे ज़रा एक डायग्राम मैंने अभी शेयर किया है। आगे, 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 यू हैव टू आगे, आगे थोड़ा-सा नेक्स्ट मूव करें। अब हाँ, नेक्स्ट मूव करेंगे। दिस थिंग नहीं, इससे बैक जाएँ थोड़ा-सा, ये मैं डायग्राम दिखाना चाह रही थी। हाँ, सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ आवर सेल, दिस इज़ ओवेरियन आपका जो हमारा ओवेरियन फॉलिकल है एंड वी हैव गॉट लेयर्स ऑफ सेल्स, थीका एक्सटर्ना एंड वी हैव गॉट द ग्रेनुलोसा सेल्स। सो इट्स अ टू सेल थ्योरी, टू सेल टू हार्मोन थ्योरी हम इसको कहते हैं कि वी हैव गॉट टू काइंड ऑफ हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड वी हैव गॉट द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। One of them acts on the outer layer and one of them acts on the inner layer. So initially क्या होता है कि जो outer layer है उसमें luteinizing hormone that acts and it uses steroid जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम यूज करके we make the male hormone androstenedione और testosterone. This is a precursor. सो ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल ये जो पाथवे है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टीरॉयडोजेनेसिस का एक पूरा पाथवे है। हाफ ऑफ इट वर्क्स इन द आउटर सेल लेयर एंड हाफ ऑफ इट वर्क्स इन द इनर सेल लेयर। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है आउटर सेल लेयर में। देन इट माइग्रेट्स टू द इनर सेल लेयर, ग्रेनुलोसा सेल्स में जाता है। वहाँ पे एरोमेटेज एक एंजाइम है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम एंड दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस मेल हार्मोन इनटू द फीमेल हार्मोन। So by default starts with the male hormone and eventually it makes the female hormone. And here FSH जो है तो मेन हमारा एक और हार्मोन है जो GnRH हमारा आता है ऊपर से पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, so that is working on that. So for a proper functioning we need the outer cell layer working properly, we need the inner cell layer working properly, we need the luteinizing hormone and we need the follicle stimulating hormone. And along with all this इन सारी चीज़ों को फंक्शन करने के लिए वी हैव गॉट स्पेसिफिक इंसुलिन रिसेप्टर्स, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, दे आर वर्किंग अलोंगसाइड विद दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। और वो जब सेलुलर पाथवे पे एक्टिवेट होते हैं वो इंटरनली सेल्स की सिग्नलिंग में डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि ये सारा सिस्टम इफेक्टिवली काम कर सके। सो व्हेन द थिंग्स गो रॉन्ग, either the insulin receptor is not behaving or it's working excessively, ज़्यादा काम करने लगेगा तो भी गड़बड़ होगी। तो वी विल सी हाउ डज इट वर्क। नेक्स्ट कर लें। व्हेन वी सी द इंसुलिन रेजिस्टेंस तो ये बड़ी एक डिफरेंट सी चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की कि स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू एंड लिवर ये तीनों चीज़ें तो अपनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को लूज़ कर लेते हैं। लेकिन एड्रिनल ग्लैंड्स एंड ओवेरियंस जो टिश्यू है दे रिमेन सेंसिटिव। दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग बिकॉज़ ये एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है। अब हम देखते हैं कि आपकी जो हमने अभी देख लिया कि इंसुलिन अलोंग विद द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वर्क्स वेल इन ओवेरियन थिकर सेल ताकि उसकी ओवेरियन फॉलिकल ग्रोथ हो, हार्मोन सिक्रीशन हो, ओवेरियन स्टीरॉयडोजेनेसिस हो, ये सब के लिए अच्छा काम कर रहा है। और इसके जो है आपके एंड्रोजन रिस्पॉन्स है वो भी ज़्यादा कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आपकी बाकी चीज़ों में इंसुलिन सेंसिटिविटी काम नहीं कर रही है, आपको ये लग रहा है बॉडी में कि इंसुलिन जो है ना स्केलेटल मसल में काम कर रही है, ना एडिपोज टिश्यू में, ना लिवर में, तो फिर आपको रिएक्शनरी हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है। दिस एक्सेसिव इंसुलिन देन वर्क्स एक्सेसिवली ऑन ओवेरियन टिश्यू बिकॉज़ ओवेरियन टिश्यू ने तो अपनी सेंसिटिविटी मेंटेन रखी हुई है। सो व्हाट डज़ इट डू? नेक्स्ट प्लीज़ मूव कर लेंगे। This insulin directly triggers androgen production in the ovarian theca cells. Now we have got excessive insulin in the body with a very sensitive ovarian tissue that is responding well to the insulin. So this insulin is now going to produce more of the androgen in an unchecked way. Normally जो का कंट्रोल हो जाना चाहिए था वो कंट्रोल नहीं हो रहा। इट ऑल्सो ट्रिगर्स ओवेरियन एंजाइम्स, हमने 2 एंजाइम्स मेंशन किए, P450 के 2 वेरिएंट्स हैं और ये भी ओवेरियन स्टीरॉयडोजेनेसिस को इंक्रीज़ करते हैं। अगेन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ वर्क करता है और ये एलएच की बाइंडिंग साइट पे इंक्रीज़ करता है। अगेन यानी कि ये एक पॉजिटिव फीडबैक है कि जब एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वो एलएच के रिसेप्टर साइट ज़्यादा एक्सपोज़ कर रहा है और मोर एलएच काम कर रहा है एंड मोर एंड्रोजन प्रोडक्शन हो रही है। सो इंस्टेड ऑफ इतना होता है कि आपका एरोमेटेज एंजाइम भी उतना काम नहीं कर सकता कि वो मेल हार्मोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर सके। सो यू गॉट एक्सेस ऑफ जो है आपका एंड्रोजन प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। प्लीज़ नेक्स्ट शेयर करेंगे? अब इसमें क्या हुआ कि बॉडी में क्या चेंज आएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको मिल रही है ना स्केलेटल मसल में, ना एडिपोज टिश्यू में, तो फ्री फैटी एसिड्स का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, लिवर में भी।
अच्छा, आपका मेंटल लेवल जो है वो आपका वो भी रिडक्शन हो जाएगी और मेंटल ज़्यादातर प्रोटेक्टिव फैट से ये प्रोटीन्स रिलीज़ होते हैं एंड दे आर क्वाइट प्रोटेक्टिव और ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है इनका लेवल भी कम कर देता है। जैसे आपका लेप्टिन का लेवल कम कर देता है। अगेन आपके जो एडिपोसाइट्स हैं वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगते हैं। अच्छा, सेकेंडली हाइपरग्लाइसीमिया आपको मिलता है बिकॉज़ हाइपर इंसुलिन मौजूद तो है लेकिन इट्स नॉट लेटिंग गोइंग इनटू द सेल कि जिसकी ग्लूकोज़ की अपटेक ज़्यादा हो, तो सेकेंडरी आपको हाइपरग्लाइसीमिया भी मिलता है और ये इन्फ्लेमेशन कॉज़ करता है। सो सेलुलर लेवल पे आपकी इन्फ्लेमेशन भी हो रही है, आपकी ग्लूकोज़ का अपटेक भी नहीं हो रहा है, आपके अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट हो रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज़ मूव करेंगे। सो दिस ऑल लीड्स टू हाइपरएंड्रोजनिज्म। हाइपरएंड्रोजनिज्म क्या हो गया? आपने अभी कहा कि मेल हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, फिर टेस्टोस्टेरोन लिवर जो है, लिवर पे काम नहीं कर रहा, लिवर का जो है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन लेवल कम हो जाएगा, वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, सो वी गॉट द फ्री एंड्रोजन इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा। अब वी गॉट अ लॉट ऑफ फ्री टेस्टोस्टेरोन इन द ब्लड और इनका जो है जो ये जो है इसका कुछ पोर्शन एस्ट्रोन में कन्वर्ट होता है एडिपोज टिश्यू में बट नॉट इनटू द एस्ट्राडायोल। सो इट्स अनदर काइंड ऑफ फीमेल हार्मोन जो एस्ट्रोन ज़्यादा बनता है, लेकिन एस्ट्राडायोल नहीं बन सकता। और ये जो सारा एस्ट्रोन टू एस्ट्राडायोल इफेक्ट आता है तो फॉलिकल की ग्रोथ इनहिबिट होती है। आपका एबिलिटी डिसफंक्शन शुरू हो जाता है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ वन सिंगल डोमिनेंट फॉलिकल दैट वी नीड्स इन नॉर्मल एवोल्यूशन आपके जो है एपोप्टोसिस शुरू हो जाती है उस फॉलिकल की और आपका एबिलिटी डिसफंक्शन रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाता है। सो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग कि पहले हाइपरइंसुलिनिमिया, ग्लूको हाइपरग्लाइसीमिया, फिर उसने ओवरी को अफेक्ट किया, फिर ओवरी ने और मज़ीद एंड्रोजेंस बनाए, एंड्रोजेंस ने जाके जो है एडिपोज टिश्यू में एस्ट्रोन ज़्यादा बनाया, एस्ट्रोन का लेवल ज़्यादा हो गया एस्ट्राडायोल से, अगेन उसने फॉलिकल को डैमेज करना शुरू कर दिया। प्लीज़ नेक्स्ट पे जाएँगे। नेक्स्ट प्लीज़। सो अभी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हमने कहा दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सिनर्जिस्टिकली वर्किंग विद द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टू इफेक्टिवली यूज दिस एंड्रोजन। सो अगर है आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का लेवल जो है अब वो डिक्रीज कर जाएगा और एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। आपको जो फॉलिकुलर फ्लूइड है उसमें भी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो कि एक प्रोटेक्टिव फैक्टर था वो भी आपको कम मिलेगा। और आपकी इंसुलिन जो है हाइपरएंड्रोजनिज़्म सेकेंडरी इंसुलिन सेंसिटिविटी को मज़ीद कम कर देगी। आपका एक ट्रांसपोर्टर होता है GLUT4 हम उसे कहते हैं और ये भी इंसुलिन की डिग्रेडेशन जो है इन द लिवर जो है उसको हम जो है हाइपरएंड्रोजनिज़्म कम कर देता है। आपकी इसकी वज़ह से सेंट्रल एडिपोसिटी ज़्यादा हो जाती है। आपको पेशेंट जब मिलते हैं तो आपका ना विसरल फैट यू हैव गॉट जो आपका BMI है वो भी ज़्यादा होगा और आपका वेस्ट हिप रेशियो पेशेंट का ज़्यादा प्रेज़ेंट करने लगता है। तो वो यही सेंट्रल जो एडिपोज टिश्यू है बिकॉज़ ऑफ दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लस हाइपरएंड्रोजनिज्म ज़्यादा हो जाता है। और आपको पहले भी मैंने मेंशन किया कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी काम करते हैं सिग्नलिंग में, वो भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं, तो एडिपोसाइट से आपको डैमेज मिलता है, आपको ओवेरियन सेल से डैमेज मिलता है। नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट प्लीज़। सो अब कुछ-कुछ फैक्टर्स मैंने इस पे स्टडी किए तो मुझे लगा कि लाइक दिस इज़ द मेन पैथोलॉजी बट वी हैव गॉट सम ऐड ऑन्स। अब जो क्रोनिक स्ट्रेस है दिस वाज़ इंटरेस्टिंग फॉर मी एज़ वेल कि वो रिजल्ट्स इन हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ एडिपोसाइट्स। यानी क्रोनिक स्ट्रेस भी जैसे वो अक्सर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं कहते हैं आप मोटी कहती नहीं जी ये मुझे गम था और गम से मैं सूज गई हूँ। सो दिस इज़ काइंड ऑफ एक वो है कि क्रोनिक स्ट्रेस जो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया ऑफ एडिपोसाइट्स कम करता है और आपका जो है ना ग्लूकोकार्ड इफ़ेक्ट आ जाता है प्री एडिपोसाइट्स पे। तो क्रोनिक स्ट्रेस जो है एडिपोकाइन सिक्रीशन, अट्रैक्शन एक्टिवेशन जो है इन सब सेल्स को अफ़ेक्ट करता है। और इन्फ्लेमेशन अगेन इज़ द बेसलाइन आपका क्रोनिक स्ट्रेस जो है ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट बैलेंस को ख़राब करता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द अनदर मीडिएटर दैट इज़ वर्किंग और काफ़ी लोगों ने इस पे रिसर्च भी की है। नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट प्लीज़। कॉर्टिसोल जो है वो लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय स्टिमुलेटिंग विसरल फैट एक्युमुलेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड लिपोलाइसिस। अगेन आपके स्ट्रेस में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल इनडायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज़्यादा करता है। ग्लूकोज प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करता है और इंसुलिन लेवल को भी अफेक्ट करता है। सो आपके जो हैं जो हार्मोन लेवल्स हैं ये सब ये भी स्ट्रेस से रिलेट होते हैं। सो व्हेनेवर वी हैव गॉट ओवेलेटरी डिसफंक्शन और स्ट्रेस तो ये सारा कुछ तो हम स्ट्रेस का भी एक फैक्टर इसमें रखते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट कर लें प्लीज़? अच्छा, ओबेसिटी दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो आपका ओबेसिटी है दिस प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हाइपरइंसुलिनिमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपर एंड्रोजेनिज्म।
यानी आपका कोर आपको समझ है आ गई कि मेन प्रॉब्लम क्या है पैथोफिज़ियोलॉजी में कि ये सब कुछ है। अब ओबेसिटी इसको एग्रीवेट करेगी। विज़ुअल ओबेसिटी जो है नॉन स्टेरॉइड फैटी एसिड्स लेवल्स जो हैं उसकी वज़ह से ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं। स्केलेटल मसल का अपटेक जो होता है वो इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज़ वो नॉन स्टेरॉइड फैटी एसिड्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। एंड दिस सेकेंडरी लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया और इसकी वज़ह से वही रैपिड रिएक्शन बाय द पैनक्रियाज़ एंड अगेन यू गॉट मोर इंसुलिन। अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस है ही है। मसल जो है ग्लूकोज के बजाय इसको यूज़ करें बिकॉज़ ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड अगेन सेकेंडरीली इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ द इंक्रीज़ ग्लूकोज इन द ब्लड। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट नेक्स्ट शेयर कर लेंगे? नहीं इससे ज़रा बैक जाएँ, इससे ज़रा बैक जाएँ। ठीक है। अगेन लो ग्रेड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में भी रोल है, आपका जो साइटोकाइन की प्रोडक्शन है उसमें भी इसका रोल है ओबेसिटी का एंड अगेन एडिपोसाइट की डेथ जो हाइपरट्रॉफी के बाद हो जाती है वो भी एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट कॉज़ करती है। नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट। एडिपोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस लेप्टिन। इसकी जो हाई कंसंट्रेशन है व्हिच इनहिबिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ एरोमेटेज मैसेंजर आरएनए ग्लोबुलर सेल और एंड्रोजन्स को एस्ट्रोजन प्रोडक्शन में ये जो है बनाने में जो है हिंडर करती है। और अगर ओबेसिटी में हाई लेप्टिन लेवल्स ऑफन लीड टू लेप्टिन रेजिस्टेंस। अम, एक जब आपको ओबेसिटी होती है लेप्टिन का लेवल इंक्रीज़ करता है तो ब्रेन में एक तरह का इस तरह का होता है कि आपका ब्रेन डज़न्ट रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल और इसीलिए इसको एज़ अ प्रो इन्फ्लेमेटरी यूज़ किया जाता है। और आपके जो इंक्रीज़ लेप्टिन लेवल है अगेन एब्सेंस ऑफ फॉलिकोजेनेसिस लेकिन क्योंकि जब मेल हार्मोन नहीं बनता, फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं होती, तो आपके जो एडिपोसाइट से जो लेप्टिन रिलीज़ होता है इट गॉट अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन दैट, ठीक है? और आपके सारे जो हैं एडिनोपेक्टिन जो है सिक्रीटेड बाय द इंसुलिन सेंसिटाइजिंग जो नॉर्मल एडिनोपेक्टिन फैट से रिलीज़ होते हैं, उनका एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। वही हम देखेंगे कि हम जो ड्रग्स कुछ यूज़ करना अब शुरू हो गए हैं, वो जो एडिपोसाइट्स पे इफेक्ट करने के लिए वो यही मैकेनिज़्म है कि हम ये वाले जो एक्टिवेटर्स हैं इनको हम यूज़ करना चाहते हैं। प्लीज़ नेक्स्ट चले जाएँ। डाइट अभी हमने कहा कि फैट मसल जो है नॉन स्टेरॉइड फैटी एसिड्स को यूज़ करता है अपनी एनर्जी के लिए। सो अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इनटेक प्ले अ रोल इन पीसीओएस बाय प्रोड्यूसिंग एन इन्फ्लेमेटरी स्टेटस एंड रिड्यूसिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इनटेक जब पेशेंट ज़्यादा करता है तो आपका ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा सर्कुलेशन में ज़्यादा होता है। आपका स्पेसिफिक जो साइटोकाइन्स हैं जो प्रोटेक्टिव होते हैं उनको सप्रेस करता है। सेकंड बात विटामिन डी की डेफिशिएंसी। दे रिजल्ट्स इन इंसुलिन रेजिस्टेंस अगेन बाय कॉजिंग एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। और विटामिन डी जो है डाउन रेगुलेट्स द एएमएच प्रोमोटर रीजन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्शन ऑफ एन एफिशिएंट folliculogenesis. So vitamin D की deficiency also plays a role in PCOS. We have got saturated fatty acid का intake जो है वो भी अगेन एक नेगेटिव जो है रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, सो वी सी पीसीओएस इज द मेन कोर। हमने एडिपोज टिश्यू में देखा वी हैव गॉट इंक्रीज फैट आपकी इन्फ्लेमेशन है इन्फ्लेमेशन जो साइटोकाइंस हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं लिवर में इफ यू गॉट टू सी के सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन डिक्रीज हो रहा है फैट की डिपोजिशन ज़्यादा हो रही है आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं पैनक्रियास क्या करें वो हाइपerinsulinemia कॉज़ करें, वो सेकेंडरीली ओवरी में जाके एंड्रोजन को इंक्रीज़ कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन का कैटाबॉलिज़्म को डिक्रीज़ कर रहा है, उस साइड की डेवलपमेंट को अफ़ेक्ट कर रहा है, एड्रेनल ग्लैंड में से भी कॉर्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी ओवरी पैक कर रहा है। हमारे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हेल्प कर रहे हैं, आपके एपिजेनेटिक चेंजेस जो हैं, डीएनए हाइपरमेथाइलेशन है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन है, डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन आ रहा है एंड्रोजन में, वो अफ़ेक्ट कर रहा है। हमारे डाइटरी फैक्टर्स हैं, फूड इनटेक फैट फूड के इनटेक ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, सो दिस इज़ होल एन अमलगम ऑल ऑफ देम हैव गॉट रोल प्लेयर्स हैं छोटे-छोटे जो कि काम करें एंड अगेन ऑल ऑफ देम जब कंबाइन हो जाते हैं तो दे गिव अस दिस पीसीओएस। नेक्स्ट, नेक्स्ट कर लें। सो इन्वेस्टिगेशंस इसको हम ब्रीफ रखेंगे क्योंकि मोस्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस है वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन हैविंग अ क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अगेन जैसे मैंने मेंशन किया वी हैव टू रूल आउट द अदर कॉजेज ऑफ पीसीओ सो वी हैव टू डू द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टू रूल आउट एनी थायराइड डिसफंक्शन प्रोलैक्टिन लेवल्स टू रूल आउट हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया अच्छा हमें 7 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन वी कैन डू इट टू रूल आउट कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया
अब इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ द मेन प्लेयर हम कह रहे हैं बार-बार, तो हाउ टू कैसे उसका हमें पता चलेगा? सो विद टाइम जो उन्होंने डिफरेंट रिसर्चेज़ की, दे वर गोइंग फॉर HbA1c का लेवल भी उन्होंने देखा, दैट वाज़ एन इंडिकेटर कि जी आप देख सकते हैं, दैट कैन हेल्प यू आउट विद दैट। बट उससे भी बेहतर है कि 2R75 ओजीडीटी जो हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, ये आप करवाएँ, एंड इफ देयर इज़ इम्पेयर्ड सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू स्क्रीन फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ एज़ वेल। और आपने 1 टू 3 इयर्स इसको रिपीट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी अगर हो गई है तो 20 वीक से पहले-पहले आप इसको रिपीट करें, या अराउंड 20 वीक्स हम करते हैं। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल आप डायग्नोसिस पे कर लें, रिपीट एवरी 2-3 इयर्स, बिकॉज़ आपने अभी देखा कि आपका जो है सारी पैथोलॉजी में आपका लिपिड प्रोफाइल डैमेज हो रहा है। आपके बेसल लिवर फंक्शन टेस्ट आप करवा सकते हैं टू सी फॉर द कोमॉर्बिडिटीज़। एंड सेकंडली टोटल एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन अगेन टू सी द फ्री आपका जो है टेस्ट हाइपरएंडोजनिज्म को रिकन्फर्म करने के लिए। बट अगेन आई से द क्लिनिकल डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट कर लें? अच्छा, नहीं इससे भी नेक्स्ट करें आप ज़रा, इसको हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट कर लें? काइंड हाँ, मैनेजमेंट। So pharmacological treatment of PCOS should be individualized, symptom oriented and combined with lifestyle counseling आप उसकी इम्पोर्टेंट करेंगे। So this is a brief वो आप देखें कि उसने क्या-क्या नहीं लेना और क्या-क्या लेना है। नेक्स्ट। The top of the list is weight reduction. First of a woman diagnosed with PCOS should be weight reduction and caloric intake restriction. बहुत सी स्टडीज़ ने डेमोंस्ट्रेट किया है कि इवन 5 टू 10% अगर आप वेट रिडक्शन हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो जाएगा। सो व्हेनेवर द पेशेंट कम्स टू मी एंड आस्क्स मी, तो मेरा टॉप ऑफ द लिस्ट यही होता है कि आप वेट कम करें। समटाइम्स आई रिफ्यूज़ इवन टू गिव एनी ट्रीटमेंट स्पेशली फॉर द इनफर्टिलिटी, कि जब तक वो वेट रिड्यूस ना करे। इट्स जस्ट लाइक थ्रोइंग आप स्टोन फेंक रहे हैं और इतने बड़े समुंदर में उसने कुछ नहीं करना। आप मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटीज़ के लिए जो है वो भी आप उसको कर सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स के अलावा भी आप देखो कि अगर वो बहुत मोटी भी नहीं है तब भी यू हैव टू रूल आउट ऑल दिस। आपका ये सारा मतलब आपने स्क्रीन तो उसको कर लिया है, लेकिन आपने उसको वेट रिडक्शन एडवाइस करना है। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट कर लें डाइट। आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? आप पेशेंट को गाइड करेंगे कि शुड बी रिच इन फाइबर, लो इन सैचुरेटेड फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, एज़ वी हैव मेंशन्ड ऑल हैव गॉट अ नेगेटिव इफेक्ट। और आपका जो ग्लाइसेमिक वो जो इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको एडवाइस करना है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, बीन जो है, आपके कैरेट, लेंटिल्स, होल ग्रेन ब्रेड, ये एक्सेट्रा जो हेल्दी आपकी डाइट है वो आपने उसको एडवाइस करनी है। नेक्स्ट। नेक्स्ट कर लें। एक्सरसाइज। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है वो रिकमेंड करता है कि अबाउट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट और 75 मिनट्स ऑफ विगरस इंटेंस एक्सरसाइज पर वीक। पर वीक कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप आराम से सब कर सकते हैं। एंड सेवरल स्टडीज शो दैट एक्सरसाइज विद और विदाउट बीइंग ऑन अ डाइट कैन रिज्यूम ओवुलेशन इन वुमेन विद पीसीओएस। और यही वाली बात है कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस जो है उसके थ्रू भी जो आपके स्ट्रेस वाले हार्मोन्स हैं उनको भी कम करता है, और आपके जो हेल्दी हार्मोन्स हैं उनको सिक्रीट करता है। सो एक्सरसाइज हैज गॉट अ वेरी बेनिफिशियल इफेक्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट कर लें। कुछ वर्कअप कॉम्प्लिमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन पे भी हुआ हुआ है, जैसे चाइनीज़ मेडिसिन्स है, इम्यूनोथेरेपी है, डाइट थेरेपी है, हर्बल मेडिसिन, फूड्स है, प्रोबायोटिक्स हैं, विटामिन सप्लीमेंटेशन है, साइकोथेरेपी है, योगा है, ऑक्सीजन थेरेपी हैव बीन कंसिडर्ड एज इफेक्टिव स्ट्रेटजीज इन रिड्यूसिंग द सिवियरिटी ऑफ पीसीओएस एंड कॉम्प्लिकेशंस, बिकॉज़ एज़ वी हैव मेंशन्ड कि क्रोनिक स्ट्रेस, आपकी डाइट, आपकी बहुत सी चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं। सो दीज़ आर द स्ट्रेटजीज़ दैट कैन इनडायरेक्टली अफ़ेक्ट आपके जो बाकी जो को-फैक्टर्स हैं, उनको कम करने में ये हेल्प करती हैं। सो अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन ऑन दिस एज़ वेल, और कहीं न कहीं रोल है, बहुत एफिशिएंट नहीं कि आप इसको डेफिनिटिव करें, लेकिन कॉम्प्लिमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन का डेफिनिटली एक रोल है। नेक्स्ट कर लें। सप्लीमेंटेशन हमने कहा कि जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है, तो विटामिन डी इज़ इफेक्टिव इन सेवरल स्टडीज़। आपका जो है कोल्ड सीज़न में भी आप देते हैं, वैसे भी देते हैं, बिकॉज़ वही वाली बात है कि आपका विटामिन डी बनता है इससे कि आपको सन में जाना का होता है, तो उसका पैथोजेनेसिस ऑफ पीसेस में इसका रोल है। सो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन कैन अफेक्ट इन रिवर्सिंग
कंप्लीट रिवर्सल नहीं, लेकिन इट कैन हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओएस। रेस्वेट्रॉल इज़ अमंग द मोस्ट रिकमेंडेड सप्लीमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओएस। ये भी एक किस्म के कीमोप्रोटेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो आपको ग्रेप्स में मिलता है, आपको पीनट्स में मिलता है, और ये न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट है। तो पीनट्स का दे गॉट अ पॉजिटिव इफेक्ट, ग्रेप्स का एक बहुत अच्छा इफेक्ट है, तो दैट्स वन ऑफ द सप्लीमेंटेशन दैट कैन बी यूज्ड। अल्फा लिपो ओमेगा 3, अल्फा लिपोलिक एसिड, ओमेगा 3, ये भी कुछ जो हैं सप्लीमेंट्स हैं। बाज़ दफ़ा न्यूट्री फैक्टर वाले बड़ा अपना वो कर रहे होते हैं, सीड साइक्लिंग हो गई, ये सब कुछ, तो ये कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स इन सब के उन चीज़ों में होते हैं। सो समहाउ दे अफेक्ट, और मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी लेने में कोई हर्ज नहीं है। बिकॉज़ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी तो इवेंचुअली आपको लेनी पड़ जाएगी अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होता, बट इफ वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज एंड दीज़ थेरेपीज़ कैन हेल्प, सो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट मूव करेंगे, हाँ जी। मायोनोसिटोल, दिस इज़ वन ऑफ द एक इंसुलिन की सेंसिटाइजेशन में एक कंपाउंड है। इट एक्ट्स एज़ अ प्रिकर्सर ऑफ इनोसिटोल फॉस्फोग्लाइकेन्स व्हिच आर मीडिएटर्स ऑफ इंसुलिन एक्शंस। हमारी सेल वॉल में फॉस्फोडाटा जो है आपके फॉस्फो ये जो ग्लाइकन्स हैं, ये हेल्प आउट करते हैं। दीज़ आर द इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म जो ट्रांसपोर्ट करते हैं इंसुलिन की इनसाइड, और इनसाइड जो आपके टायरोसिन काइनेज पाथवेज़ होते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। आपके माइटोकॉन्ड्रिया पे जाके आपके जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके आपके कुछ ऐसे एंजाइम्स को डेवलप करते हैं। सो दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो दीज़ पाथवेज़ आर नॉट फंक्शनिंग वेल। तो आपका जब मायोनोसिटोल की डेफिशिएंसी, द सेल बिहेव्स एज़ के मायोनोसिटोल की डेफिशिएंसी है। अ, स्क्रीन अगर शेयर कर लें दोबारा। और मेरे स्क्रीन को क्या हुआ? मैडम डिस्कनेक्ट हो गई थी अभी, डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब अभी मैं कंटिन्यू कर लूँ कि वो फिर आ जाएगी पिक्चर? ठीक है बेटा, आप कंटिन्यू करो। ठीक है। सो दिस सिग्नलिंग पाथवेज़ में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मायोनोसिटोल का, और इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवेज़ को इम्प्रूव करता है। P13 काइनेज़ एक एंजाइम है, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। इंसुलिन लेवल्स जो है उसके ब्लड में, उसको भी कम करने में हेल्प करता है। सो मायोनोसिटोल पे भी बहुत वर्क हुआ हुआ है, एंड दे कंसीडर कि ये जो है जो मीडिएटर है, अगर इसको हम बाहर से सप्लाई करें, तो सम हाउ द अदर इट कैन हेल्प जो हाइपerinsulinemia का इफेक्ट है उसको काउंटर करने में। सो इसके डिफरेंट पाथवेज़ हैं, ग्लूटामाइन सेल में भी इट्स वर्किंग, इट वर्क्स विद द द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एज़ वेल। यानी जो आउटर सेल लेयर हमने कहा, थीका सेल्स में भी इसका रोल है, और जो इनर सेल लेयर है उसमें भी इसका रोल है। सो मायोनिसिटोल इज़ अ क्वाइट हम प्रिस्क्राइब भी करते हैं एज़ अ सप्लीमेंटेशन पेशेंट को, और 3 टू 6 मंथ्स की इसकी थेरेपी अगर आप दें तो क्वाइट इफेक्टिव होता है, लेकिन नॉट ओनली मायोनिसिटोल, इट हैज़ टू बी वर्किंग इन अ ग्रुप विद एक्सरसाइज, विद वेट लॉस, विद एवरीथिंग। When we particularly come into the pharmacological treatments, so metformin, बेगोनाइट एक कैटेगरी है ड्रग्स की, एंटी डायबिटिक ड्रग इसको कंसीडर किया जाता है, और ये एक फर्स्ट चॉइस ड्रग है अलोंग विद द कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल टू रिस्टोर द ओवेरियन साइकिल एंड पीसीओएस। क्योंकि इसकी इंसुलिन सेंसिटाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं मेटफॉर्मिन को, जो कि नॉर्मल आप ग्लूकोफेज के नाम से इसको जानते हैं। और ये एक एंटी हाइपर एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी है इसका शॉर्ट टर्म में। अगर आप शॉर्ट टर्म दें तो थोड़ा-सा बालों की, जो बाल मेल पैटर्न में आ रहे हैं, उनको भी इफेक्ट करता है, और ओवेरियन साइकिल की रिस्टोरेशन में इसका बहुत हेल्प है। पास लोग इसको वेट लॉस के लिए कंसीडर करते हैं, बट वो इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट इसका नहीं है। नेक्स्ट अगर हम जाएँ तो हम आजकल फैशनेबल आइटम है, एंटी ओबेसिटी मेडिकेशंस हैं। तो हमारे पास लीराग्लूटाइड है, सेमाग्लूटाइड है, बोथ ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं, ऑर्लिस्टैट भी है, जो आपका जो फर्स्ट लाइन पहले थी ऑर्लिस्टैट को उन्होंने रिकमेंड किया हुआ था कि ये भी फैट की एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होने देती आपके गट से। तो दिस इज़ इनिशियली इट वाज़ यूज्ड, सिर्फ़ एक डिसएडवांटेज है, पेशेंट्स ले लेते हैं, लेकिन जो स्टूल है वो थोड़ा ऑयली हो जाता है, सो ज़रा-सा पेशेंट को कन्वीनिएंट नहीं होता इसको यूज़ करना, बट स्टिल इफ दे वर्क इट विद द डाइट इट वर्क्स वेल। लेकिन अभी जो नई चीज़ें आ गई हैं, दे आर मोर इफेक्टिव, जैसे सेमाग्लूटाइड हो गया, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड जो हैं, दे आर ये जो रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, दे इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करते हैं, ये पैनक्रियास से इंसुलिन की
प्रोडक्शन को बेहतर करते हैं, ग्लूकोज का अपटेक बेहतर कराते हैं लिवर में। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले करते हैं और ये आपको एक सेटाइटी की फीलिंग देते हैं। बहुत से एक्टर्स पे शक किया जाता है कि वो ये लगा रहे हैं, अगर वो लगा रहे हैं वेट लॉस के लिए तो इट्स नॉट बैड, बिकॉज मैं तो इसको बहुत वो करती हूँ, इट इट हेल्प्स अस treating PCOS for 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, and she's not going anywhere. The weight is not reducing. Vicious cycle establish हो गया है। तो अगर आप इस साइकिल को ब्रेक कर लें तो मेरा ख्याल में कोई बुरी हर्ज नहीं है। एंड से दे आर वर्किंग वेल। और ये आपके जो हैं सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। और एक एडवर्स इफेक्ट जो है, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा है एंड द हिस्ट्री ऑफ पेनकेटाइटिस, कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी और लोग टॉलरेट करना ज़रा मुश्किल होता है, बट इफ़ दे डू इट वेल दे वर्क वेल। सो आई डू रिकमेंड देम और मेरे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं पेशेंट्स पे एंड आई एम रियली हैप्पी कि काफ़ी चीज़ों से मैं बच गई हूँ। एंड देन वी हैव गॉट अब पर्टिकुलरली पेशेंट है, इट डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस व्हाट डज शी वांट, क्योंकि आपको टेलर करना होता है। इफ शी वांट्स समथिंग फॉर द हेयर यू हैव टू गिव इट फॉर द हेयर, बिकॉज एज वी हैव मेंशन्ड वी हैव गॉट डिफरेंट फिनोटाइप्स। कहाँ कहीं पे हाइपर एंड्रोजेनिज्म डोमिनेट कर रहा है, तो उस टाइप को ज़ाहिर बात है वो चाहिए कि हम बालों को कैसे कम करें। सो यू गॉट सर्टेन ड्रग्स जैसे एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, स्पाइरोलेक्ट्रॉन एक डायरेटिक के तौर पे भी यूज़ होता है। सो पर अनलिमिटेड फॉर अ लिमिटेड टाइम, वी कैन नॉट गिव इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। वी हैव गॉट 5 अल्फा रिडक्टेज फिनिस्टेराइड, ये भी आपको हेल्प कर सकता है कि उस एंजाइम को ब्लॉक कर ले जो मेल हार्मोन बना रहा है। अगेन इट हेल्प्स बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपकी जो टॉपिकल कुछ एफ्लोरेनिथीन हाइड्रोक्लोराइड है, ब्लीचिंग है, केमिकल एपिलेशन है, कॉटरी कर सकते हैं, लेज़र कर सकते हैं। ये आपकी सारी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं। बालनेस के लिए आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं। अगेन आपके स्टेम सेल थेरेपीज़ हैं, बाकी सब कुछ है। अगेन लिमिटेड है, इसका बहुत आप तबाही का इफ़ेक्ट नहीं कह सकते, बट दीज़ आर सम ऑफ द ट्रीटमेंट्स दैट आर अवेलेबल फॉर दीज़ मेल पैटर्न बालनेस एज़ वेल। So, if we go to the menstrual irregularity, if the patient becomes a young lady hai, she's fat, she's obese, and she's having some facial hair, so she's got two concerns. She wants कि उसके hair भी कम हो जाए, and she wants कि उसके periods भी ठीक हो जाए. So I will be more concerned कि मैं उसके ovulatory dysfunction को या उसको जो regular periods आ रहे हैं उसको कैसे ठीक करूँ. So what would I can give her? She doesn't want to get pregnant because she's not married और उसकी choice नहीं है। तो उसके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के लिए द मोस्ट कॉमन चीज़ जो हम देते हैं वो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं एंड दे हैव गॉट सम न्यू ड्रग्स जिसमें हम ऐसे प्रोजेस्टेरॉन कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं जिससे उसका वेट गेन भी कम हो रहा है, जिससे उसकी फ्लूइड रिटेंशन भी कम हो रही है। सो यास्मीन और ऐसे एजेंट्स भी मतलब अवेलेबल हो गए हैं जिनके एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स भी हैं। सो आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड अदरवाइज इफ शी इज़ ओके विद हैविंग नॉट हैविंग पीरियड्स फॉर अबाउट 3 months, you can give her progesterone for a period of 15 to 20 days at the end of the cycle so she can have a withdrawal bleed. It's her choice. You have to discuss with her what does she want. Secondly, if a patient comes young hai, newly married hai, she wants to conceive, she knows she's been struggling with PCOS. Again, we have got certain drugs because the main core यही है कि जो folliculogenesis नहीं हो रही है, you don't get a good dominant follicle at the right time. So what you have to do, you have to introduce ovulation. आप उसे जो ovulation को introduce कैसे करेंगे? We have got certain drugs जो कि एंटी एस्ट्रोजेंस होते हैं। दे गिव द सिग्नल टू द ब्रेन दैट वी डोंट हैव इनफ एस्ट्रोजन इन द बॉडी। So please send some FSH, send some LH so that we can counter that barrier that is drug है क्लोमिफेन सिट्रेट एंटी एस्ट्रोजन है, इट वर्क्स ऑन द ब्रेन और इसको आप डोज में देते हैं 50 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं, गो कैन गो अप टू 150 एंड सेकंड टू 50 ऑफ द साइकिल, देन यू मॉनिटर द फॉलिकल अराउंड 12-13 डे एंड सी कि अगर फॉलिकल अच्छा बना है देन यू कैन गिव हर शॉट ऑफ बीटा एचसीजी, सॉरी हम इनको गोनाडोट्रोपिन जो आपका होता है प्री सेज इस किस्म के इंजेक्शंस के फॉर्म में आता है, यू कैन गिव देम artificially to induce ovulation. So this is one of the way you can counter. The next जो अभी क्वाइट इन फैशन और एक चॉइस की ड्रग है एरोमेटेज इनहिबिटर। इनिशियली जब आप इसको प्रिस्क्राइब करें तो पेशेंट आ जाता है जी एंटी कैंसरस ड्रग है। ऑब्वियसली इट वर्क्स ऑन द ब्रेस्ट कैंसर में दी जाती है बिकॉज इट वर्क्स ऑन द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो आपके एरोमेटेज एंजाइम है उसको ब्लॉक करता है, सो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम करता है। अगेन इट गिव्स अ सिग्नल
we don't have enough estrogen, so send some more FSH. So again aromatase enzyme के जो inhibitor है इसको हम यूज़ करते हैं hypothalamic pituitary axis को नेगेटिव फीडबैक से रिलीज करने के लिए, एंड वी गेट अ लॉट ऑफ FSH। अगेन हम चाहते हैं कि एक फॉलिकल डेवलप हो, इट डेवलप्स एंड अगेन वी कैन हैव अराउंड 12-13 इन मॉनिटरिंग के बाद आप इसको वो कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं, ट्रिगर दे सकते हैं। अगर रिफ्रैक्टरी है, इससे भी काम नहीं हो रहा, देन वी हैव gonadotropins, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज़ एक वी गॉट अ लॉट ऑफ फॉलिकल्स डेवलप नहीं हो रहे, बट वी गॉट अ लॉट ऑफ देम। सो अगर हम उसको अनकंट्रोल्ड स्टिमुलेशन देंगे तो इट कैन प्ले हैवक, हमारे पास बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स बन जाएंगे। अगेन वी कैन गो टू ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, दिस इज अनदर नाइटमेयर फॉर द IVF कंसल्टेंट एंड फॉर द क्लिनिशियन जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट के लिए। सो आप लो डोज रिजीम से शुरू करेंगे, यू गेट अ वेरी स्मॉल डोज, और आप मॉनिटर करते रहोगे कि बड़ा तो नहीं हुआ, और फिर अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा देन आप उसका हाफ ऑफ करके वो करेंगे जब तक कि ट्रिगर नहीं आ जाता, अगेन 12 to 13 डेज पे। सर्जिकल का कोई रोल है इसमें? यस, वी हैव गॉट अ रोल। इफ यू गॉट अ गोनेडल थेरेपिन को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, क्लोमिफेन से भी रेजिस्टेंस हो गया है, किसी तरह अब उसकी ओवरीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, देन पीसीओएस इस का जो तरीका है वो लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन डायथर्मी पहले करते थे, अब ड्रिलिंग उसको कहते हैं, लेप्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोकॉटरी करते हैं। 4 पॉइंट्स पे आप स्टिमुलेट करते हैं उसको, 4 मिलीमीटर 4 सेकंड्स के लिए करते हैं ताकि आपका जो है फॉलिकल का रिस्पॉन्स थोड़ा-सा अच्छा हो जाए। यानी फॉलिकल पड़े में उनको थोड़ा-सा आपने इलेक्ट्रोकॉटरी से स्टिमुलेट करना है ताकि वो उस विशियस साइकिल को ब्रेक कर सकें एंड ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाए। क्योंकि हमें डर होता है कि हम गोनेडोट्रोपिन देंगे तो ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम का खतरा ज़रा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से दिस इज़ वन ऑफ द थिंग, अब तो बहुत रेयरली यूज़्ड होती है बट स्टिल इट हैज़ गॉट अ रोल जहाँ पे आपको बहुत रेजिस्टेंस किस्म के पीसीओएस मिले। ART आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, इनवाइट्रो फर्टिलाइज़ेशन भी है, एक्सी भी यूज़ कर सकते हैं, और ये थर्ड लाइन थेरेपीज़ हैं। व्हेन यू गॉट विद द अदर वन कुछ नहीं हुआ, देन यू कैन गो विद एसोसिएटेड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेरे पास जब पेशेंट्स आती हैं, दे टेल मी कि हमें तो पीसीओएस है, हमारा क्या होगा? तो आई टेल देम दैट यू आर अ वेरी लकी ग्रुप, you have got surplus amount of eggs, बट यू आर अ वेरी डेंजरस ग्रुप बिकॉज़ वी हैव टू बी अ थिन लाइन है कि कहाँ हमने आपको ज़्यादा स्टिमुलेट कर दिया, एक और प्रॉब्लम बन जाएगा, और अगर कम कर दिया तो हमें वो मिलेगा अचीव करना चाह रहे हैं। सो अगेन एक थोड़ा-सा ब्रीफ इसका वो है, ये सारी ड्रग्स हैं जो आपके यूज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल एंड में एक वो है स्लाइड है, मैं शेयरिंग में आ गई है, मैं देखूँ ज़रा। आप आगे जाएँगे, काफ़ी आगे जाएँ, एंड पे जाएँ? आगे, आगे, आगे। आई बीन थ्रू दिस, आगे जाएँ। बिल्कुल एंड पे। हुँ, आगे, नेक्स्ट ये बस। सो अगेन बैक बैक हाँ। सो एनिपुलेशन विद इनफर्टिलिटी, फर्स्ट लाइन क्लोमिफेन, सेकंड लाइन लेट्रोज़ोल है, आप मेटफॉर्मिन इसके साथ दे सकते हैं। इंसुलिन की रेजिस्टेंस को काउंटर करना चाह सकते हैं, आप मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। ओबेसिटी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, आपको मैंने ड्रग्स बता दी जो अभी हम नए यूज़ कर रहे हैं। हिर्सुटिज़म, इलेक्ट्रोलिसिस है, आपकी इलेक्ट्रोकॉटरी यूज़ कर सकते हैं। एक्ने, टॉपिकल क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और अगर एनिवुलेशन है, कोई एवुलेशन हो ही नहीं रही और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, शी डज़न्ट वांट टू कंसीव, आप उसको हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन दे सकते हैं। अगर उस बहुत सेकंड लाइन अगेन इसमें मेटफॉर्मिन आ सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर उसको आ रही है, अगेन मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। ओबेसिटी, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हिर्सुटिज़म में आपने कहा कि आपके पास स्पाइरोलेक्टोन भी है, आपके पास ड्रग्स में वानिका भी है, फिनेस्ट्राइड भी दे सकते हैं। थर्ड लाइन अगेन मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन हर जगह यूज़ इसलिए हो रही है कि वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करती है। तो हमें पता है कि कोर इश्यू इंसुलिन रेजिस्टेंस है, सो वी हैव टू काउंटर दैट। एक्ने में भी अगेन आपका जो है आपके हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको डिफरेंट एंटीबायोटिक क्रीम्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप रेटिनॉल भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अगर सेकंड लाइन है तो फिर स्पाइरोलेक्टोन, ताकि आपने उस एंजाइम को ब्लॉक करना है। थैंक यू। आगे जी, नेक्स्ट कर लें। सो वी हैव सीन पेशेंट्स पीसीओएस विद प्रेगनेंसी भी हम देखते हैं। पेशेंट ज़रा डरा हुआ होता है कि जी मेरे तो पीसीओएस थे, अब मेरे साथ क्या होगा? तो वी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज़ ओबेसिटी इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है मिसकैरेज का। पीसीओएस एड अप हो जाए, अगेन रिस्क फैक्टर है मिसकैरेज का। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वी कैन सी हाइपरटेंशन, प्री-एक्लैम्प्सिया, IUGR, these are some of the risk factors that we can see in patients presenting with PCOS.
हमने इनको स्क्रीन करना है, हमने इनको उसी तरह मॉनिटर करना है, एंड इफ समथिंग कम्स अप वी हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट। थैंक यू जी। इन द एंड कोई क्वेश्चंस अगर हैं तो पूछ लें। आई वाज अ बिट लाइक फास्ट मेरा ख्याल में, जो स्क्रीन शेयरिंग के साथ चल नहीं रही थी। it was really good because we started late. I apologize to you, Shandana, for that. नहीं, Any questions? बहुत ज्यादा हमारे 21 तक आ गए थे, although इसकी ठीक तरह से वो नहीं हुई थी dissemination. So like you're very popular, Shandana, एकदम से लोगों ने join कर लिया. I can see a few gynecologists here. Answer, आपका कोई question हो? There's Sheba, there is B. Hussain, Fawzia Gul, Khatija, Saima Manzoor. Sheila Noor is here. Okay, Sheila. ये भी gynecologist हैं, हमारी प्रोफेसर साहिबा है, and Samara अस्सलाम Aslam and वालेकुम। अगर उनसे सवाल करना पूछे वो पूछ लेंगी। चले सवाल It जवाब was a करें। good, it was a very good presentation. लेकिन don't you think nowadays people are over diagnosing polycystic ovaries, क्योंकि हर अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट जो है वो उसको लिख के भेज देता है कि दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस, और दे आर सो वरीड उन कि ये क्या हो गया है, और उनको थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत होती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आई थिंक they don't need any medication, they just need lifestyle modification and some bit of counseling. लेकिन अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट जो है विद ड्यू अपॉलॉजी मुझे लगता है कि वो लोग जरा ओवर डायग्नोज कर रहे हैं। तो व्हाट इज द रीसेंट क्राइटेरिया फॉर डायग्नोजिंग पॉलीसिस्टिक ओवरीज, शांदाना? मैडम इसमें ये मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, आपको पता है हमारे गायनी में। एक तो पहले एनआईएच का क्राइटेरिया था, फिर हमारा जो रॉटरडैम क्राइटेरिया चल रहा है, फिर उसके बाद एक पीसीएस की सोसाइटी ने क्राइटेरिया बनाया। सो वी हैव गॉट ऑल दीज डिफरेंट फिनोटाइप्स। उन्होंने इन फिनोटाइप्स को अब डिफाइन कर दिया है, और आपका खाली पीसीओस की मॉर्फोलॉजी होना, अगर हम बैक पे जाएं, अगर स्लाइड दोबारा शेयर कर सकते हैं। एक शुरू में एक जी मैं स्लाइड कर थी, देता हूँ मैडम। हाँ जी, फिनोटाइप्स वाली ज़रा शुरू में जाएँगे। तो उसमें मैडम जो डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं उसमें नॉट नेसेसरी कि ओवेरियन मॉर्फोलॉजी होगी तो आप उसको पीसीओएस लेबल करेंगे। समटाइम्स यू हैव टू गो विद द सिम्पटम्स। अगर आपके पास सिम्पटम्स आ जाए, यू पीपल प्रेजेंट विद डिफरेंट फिनोटाइप्स। अब जैसे आप टाइप सी पे कह रहे हैं तो उसमें आपकी अल्ट्रासाउंड पे फिनोटाइपिकल मॉर्फोलॉजी है। उसके हाइपर एंड्रोजेनिज्म के फीचर्स भी हैं, बट शी इज़ ओवुलेटिंग नॉर्मली। सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ फिनोटाइप, के आप ये पीसीओएस की एक फिनोटाइप है, और आपने इसको सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट करना है बिकॉज शी इज हैविंग अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई प्रॉब्लम नहीं, शी इज जस्ट हैविंग हेयर और मॉर्फोलॉजी। बिकॉज मैडम जो पीसीओएस की मॉर्फोलॉजी है उस पे आपने कहा ना पॉलीजेनेटिक है, कि आपका जीन्स इन्वॉल्व है। देयर आर जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, दीज आर द जीन्स इन्वॉल्व फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, दीज आर द जीन्स इन्वॉल्व इन डायबिटीज मेलाइटिस। द जीन्स आर देयर, वो एक्सप्रेस कैसे करें ये डिफरेंट है डिफरेंट में। सेकंड बात मैडम, आप जो मॉर्फोलॉजी की बात, साउंड वाली बात, इसमें भी अब डिफरेंट क्राइटेरिया डिफरेंट सोसाइटीज ने एस्टैब्लिश किए हैं। अगर हम रॉटरडम की बात करें वो भी 12 फॉलिकल्स वाली पे जा रहा है, लेकिन अब जो नया क्राइटेरिया है उसमें 25 फॉलिकल्स तक है। इसीलिए इसकी इंसिडेंस में डिफरेंस आ रहा है कि अगर आप एक क्राइटेरिया फॉलो करेंगे इंसिडेंस डिफरेंट है। अगर आप ये 25 वाला फॉलो करोगे तो आपको हार्डली 5 to 10% पीसीओस मिलेंगे। अगर आप 12 वाला फॉलो करें तो आपको 25 to 30% पीसीओस मिलेंगे। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो। मैंने पता नहीं, आप सीनियर हैं, आप लोगों का अपना, मतलब मैं अपने क्लिनिकल उस पे ये देखती हूँ कि जैसे ये फिनोटाइप्स के अकॉर्डिंगली हमने मैनेज करना है। दिस इज अ मोर ईजियर वे टू डील। थोड़ा-सा पीछे करेंगे, इससे भी पीछे जाएँ। शुरू में एक स्लाइड है फिनोटाइप वाली, पीछे जाते जाएँ। और पीछे, और पीछे जाएँ। और थोड़ा-सा और, थोड़ा-सा और, ये। Conclusion है ना, वेक्टर क्लिनिकल टेक्नोलॉजी ने पीसीओ पे को तो मैडम ये जो आपके फर्स्ट ए और बी है, दे आर कंसिडर्ड टू बी क्लासिक वन्स, और जो आपका सी है जिसमें हाइपर एंड्रोजनिज्म एंड मॉर्फोलॉजी है वो सी में आता है, और डी में एनोवुलेशन मॉर्फोलॉजी है, लेकिन कोई हाइपर एंड्रोजनिज्म के फीचर्स नहीं है। अगेन 19 जीन्स तो अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, इससे ज्यादा जीन्स हैं, दे आर वर्किंग,
बट कौन सा जीन एक्सप्रेस करता है, किसने लेवल की इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ये मैटर करेगा। डॉक्टर फौजिया कुछ कह रही है? अस्सलाम वालेकुम, आवाज नहीं आ रही। थैंक यू डॉक्टर शैला, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल लेक्चर था शानदाना का, और पैथोफिजियोलॉजी और बेसिक मैकेनिज्म बड़े अच्छे एक्सप्लेन किए थे। मैं तो यही कहूंगी कि रिकॉर्डेड लेक्चर अगर हमारे साथ शेयर कर लें तो हमारे कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी, इसमें मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ कि ये जो हमारे वेबिनार्स हैं, ये विमेन मेडिकल कॉलेज WMC की यूट्यूब के ऊपर सारे अपलोडेड पड़े हुए हैं और इसको विद इन अ वीक अपलोड कर दिया जाएगा। दिस इज अ रिकॉर्ड फॉर द होल वर्ल्ड टू सी एंड टू एंजॉय, और हमारी सारी स्टूडेंट्स भी इसको देख रही होती हैं। ये तो अच्छी बात है। बहुत जबरदस्त बात है डॉक्टर सलमा, इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। You should go on the YouTube. ये हमारा शानदाना का शायद 153rd था वेबिनार, तो ये हमने 150 से ज्यादा कर चुके हैं ऑलरेडी एंड इट इज ऑल देयर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस मैम, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, और इंशाल्लाह हम आपके वेबसाइट को जरूर विजिट करेंगे। हाँ प्लीज आप किया करें, और अगर आपका, मैंने तो अयूब मेडिकल कॉलेज की लेडी डॉक्टर्स की ग्रुप में ये डालती रहती हूँ। तो चलें, टाइम इज अप क्योंकि 12:15 होने वाले हैं। शानदाना, इट वाज लाइक अ मैजिक, यू डिड अ वेरी वंडरफुल थिंग। लेकिन ये सारा सुन सुन के मैं परेशान हो रही थी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ गायनी नहीं है, इसमें तो मेडिसिन भी आ गया, इसमें तो आपका डायबिटीज कंट्रोल भी आ गया, स्लिमिंग इफेक्ट्स भी आ गए, अल्टरनेट भी आ गए। ये तो पूरा एक समुंदर है। अल्लाह रहम करे। बहुत ज्यादा मैडम, इस पे तो हम है बहुत ना, से लोग बहुत इन्वॉल्व भी ज्यादा करते हैं। एंगल्स हैं इसके, जिनको आपने केटर करना है और जिनको आपने मैनेज करना है। बिल्कुल तो बिल्कुल मैडम। hats off to you gynecologists, and thank you for all the attendees, and thank you Shandana for giving us the time. And next week हमारा डॉक्टर कासिम का होगा, जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। And let's hope we meet then, inshallah ta'ala. So have a very good weekend. Pakistan Zindabad. Jazakallah khair. Allah Hafiz. Thank you. Thank you, madam.